بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میری سانس مجھ پر برس رہی تھی۔ آج پھر وہی ہوا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا تھا۔ آٹا ڈھیلا ہو گیا اور میرا 14 سالہ دیور سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معصوم چہرے کے پیچھے اتنی بڑی مکار حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ میرے سے اپنی ساس کی باتیں اور دیور کی معنی خیز نگاہیں مزید برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں آٹے کو کچن کی شیلف پر رکھ کر جلدی سے ہاتھ دھوتی کچن سے نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق انسان چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی کو بتاؤں، لیکن میں بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں وہیں کمرے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور شوہر کی واپسی کے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی ساس کے طنز میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انہوں نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی تھی، مسلسل کچھ نہ کچھ بولتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میرے تو جیسے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ تبھی اچانک اس سب میں کمرے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ میں جانتی تھی یہ دستک دینے والا شخص کون ہے۔ یہ وہی تو تھا جس کی وجہ سے روز میری اس گھر میں تذلیل ہو رہی تھی۔ یہ نہ تو میرا شوہر تھا، نہ ہی مجھ پر غصہ نکالتی ساس تھی، بلکہ یہ وہی 14 سالہ دیور تھا۔ وہ کس نیت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا میں اچھے سے جانتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ شاید کسی طرح میرے کانوں سے یہ آواز دور ہو جائے، مگر پھر بھی آواز کی شدت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہلی سی آواز بھی میرے کانوں کے پردوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اس گھر میں ڈھیروں ارمان لیے دلہن بن کر آئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، کچھ امیدیں تھیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن شادی کی اگلی صبح اس گھر کی بڑی بہو کا شاندار استقبال جس طریقے سے کیا گیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اس وقت اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب اچانک میری ساس روتی ہوئی حیران پریشان عالم میں کمرے کے اندر آئیں اور کہنے لگیں کہ وہ آ گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ کون آ گیا ہے، یہ کہہ کر وہ اسی وقت پیچھے مڑ گئیں۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی جلدی سے اپنے بال بنائے، سر پر دوپٹہ لے کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ تبھی میری نظر گھر کے دروازے پر پڑی جہاں میری ساس کے سامنے کوئی عمر رسیدہ آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس شخص کی ہلکی داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھا اور یہاں کیا کر رہا تھا۔ میں تو اس کی آخری کہی بات بھی ٹھیک سے نہیں سن پائی۔ اس طرح اماں کے آگے کھڑا دیکھ کر میرا شوہر ایک دم مشتعل ہو گیا اور انہیں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا۔ تبھی اماں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرنا، میرے اور ان کے تعلق کا ہی کچھ لحاظ کر لو۔ یہ سن کر حمزہ یعنی کہ میرے شوہر نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ میں ابھی تک اسی کشمکش میں مبتلا ان سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کون سا رشتہ تھا جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے؟ تھوڑی ہی دیر میں حمزہ نے اس عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے ہی کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو آپ کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہاں رکھ لیتے ہیں، لیکن اس عورت کو اس گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر ذرا سا اطمینان آ گیا۔ وہ شخص اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ 14 سالہ بچہ بھی تھا جو کہ معصوم سے چہرے کے ساتھ ہم سب کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں اب تک حالات کو صحیح سے نہیں سمجھی تھی۔ میں جتنا سمجھی تھی وہ یہ تھا کہ یہ لوگ یہاں رہنے آئے تھے اور اپنا سامان پہلے ہی ساتھ لے آئے تھے۔ میں بھی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے کہ آخر وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں رہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، آخر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے پہلے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر میرے اصرار کرنے پر بولا، میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس قصے کو شروع کہاں سے کروں اور کہاں ختم کروں۔ مختصر یہ کہ یہ شخص کوئی اور نہیں، میرا سگا باپ ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے باپ کو گھر سے باہر ہی دیکھا۔ میرے ابا کی راتیں ہمیشہ گھر سے باہر گزرتیں۔ آخرکار جب میں 8 سال کا تھا ابا میری ماں پر بھری جوانی میں سوتن لے آئے اور میرے لیے سوتیلی ماں بھی۔ ابا کو کوٹھوں پر جانے کی لت لگ گئی تھی۔ وہ اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے روزانہ وہاں پہنچ جاتے اور پھر وہیں سے ایک دوشیزہ کو اٹھا کر ہمارے گھر لے آتے۔ اماں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تو ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔
हमेशा के लिए गायब हो गए। सारी जवानी मेरी माँ ने शौहर के होते हुए भी बेवाओं की तरह जिंदगी गुजारी। मैंने अपनी माँ को इस शख्स की वजह से दर दर की ठोकरें खाते देखा है। अब मैं इसे कैसे कबूल कर लूं, जबकि अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ आया है। हमजा की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि हमजा इस वक्त बहुत ही लाचार और बिखरा हुआ सा लग रहा था। खैर, मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। अब अगर इस उम्र में हमें उनकी खिदमत का मौका मिल रहा है तो हमें इस मौके की कदर करनी चाहिए और उनकी खिदमत करके सवाब कमाना चाहिए। मेरी बातों पर शायद उसे कुछ हौसला हुआ। कुछ दिन घर में बेचैनी सी रही, क्योंकि परसों से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में वक्त तो लगता ही है, लेकिन मुझे इस मासूम बच्चे पर तरस आता। ये बेचारा सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर बैठा रहता। मैंने हमजा से कहकर इसका स्कूल शुरू करवा दिया। अब मैंने सोचा कि वो सारा दिन स्कूल से आने के बाद परेशान सा बैठा रहता है, तो क्यों ना मैं इसे पढ़ाना शुरू कर दूं। अब जब वो स्कूल से वापस आता तो शाम को मैं थोड़ी देर उसके कमरे में जाकर पढ़ा देती, उसका होमवर्क करवाती और कुछ न कुछ नया भी पढ़ा देती। वो पढ़ाई में बहुत सुस्त था, इसीलिए उसे एक एक चीज़ समझाने में और पढ़ाने में काफ़ी वक्त लग जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे साथ मानूस हो गया। उसकी मासूमियत ने वहाँ हर किसी का दिल मोह लिया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी कि मैं जब भी उसके कमरे में जाती वो ऐसे झिझक कर बैठता जैसे न जाने मैं उसे क्या कह दूंगी। मैं जब भी इस कमरे की किसी न किसी चीज को हाथ लगाने की कोशिश करती तो वो किसी न किसी बहाने से मुझे रोक लेता। उसकी इस बात ने मुझे काफी दफे अजीब सी कश्मकश में डाल दिया। वक्त यूं ही नहीं गुजर रहा था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई। उस दिन मैंने उसके जिम्मे टेस्ट लगाया हुआ था। जब मैं कमरे में गई तब वो बाथरूम में था। तब मैंने सोचा कि उसके निकलने से पहले टेस्ट के सवाल लिख कर रख लेती हूँ। जैसे ही मैंने उसकी किताबों वाली दराज खोली तो उसमें मुझे कुछ ऐसी किताबें देखने को मिली जिन्हें देखकर मुझे इस बच्चे पर बचपने का गुमान ही खत्म हो गया। इसके साथ वहाँ कुछ नशावर चीजें भी पड़ी थीं। अभी मैं ये चीजें देख ही रही थी कि दानियाल यानी कि मेरा देवर बाथरूम से निकल आया। वो मुझे इन सब चीजों के साथ देखकर एकदम हैरान हो गया। मैंने उसे देखते ही कहा कि ये सब क्या है, तुम यहाँ बैठकर ये सब करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं तो उसे बड़ी भाभी बनकर समझा रही थी, लेकिन वो शायद समझना नहीं चाहता था। उसने मेरी जानिब बड़ी ही मायने खेज नजरों से देखा और बोला, अगर आपने सब देख ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए वो मेरी जानिब बढ़ने लगा। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। उसकी तरबियत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसका चेहरा देखकर अब घिन आ रही थी, जहां मासूमियत रुखसत हो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहां से निकल आई। तभी वो पीछे से बोला, आज तो यहाँ सब घर वाले मौजूद हैं। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें इस थप्पड़ का बदला बहुत महंगा उठाना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जल्दी से मैं अपने कमरे में आ गई। पहले मैंने सोचा कि मैं ये सब हमसा को बता दूं, लेकिन इस तरह मैं सालों बाद जुड़े रिश्तों में दरार नहीं पैदा करना चाहती थी। उस दिन की खामोशी की मुझे बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। उसने अपनी मासूमियत से सबको अपना गिरविदा बना लिया, लेकिन मेरे सामने उसकी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि वो एक तवाइफ का बेटा था, और जितना भी आला किरदार का मालिक क्यों न बन जाए, उसके अंदर खून तो नाजायज ही था। खैर, उस दिन के बाद से जब भी कोई काम करने लगती तो वो उसमें रुकावट डालने की कोशिश करता। कभी मेरी हांडी में मिर्चें डाल देता, तो कभी मैं कपड़े इस्त्री कर रही होती और किसी काम से इधर उधर हो जाती तो मेरे कपड़े जला देता। ये सिलसिला बहुत अरसे तक चलता रहा। मेरी सास मुझे मनहूस समझने लगी, क्योंकि बहुत दिनों से हर रोज मेरे ही काम में कोई न कोई रुकावट हायल हो जाया करती। एक दिन बड़ी नंद के रिश्ते को देखने के लिए कुछ लोग आए। अम्मा ने मुझे कहा कि आज बेहतरीन खाना होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि लड़के के अब्बा को शुगर और ब्लड प्रेशर है, उनके लिए खाना एहतियाती जरूर बनाना। बेहतर है कि अलग सालन रोटी बना देना। मैं उस रोज सुबह से ही अपने कानों में मगन थी। सारा दिन मैंने जी तोड़ कोशिश की कि बेहतरीन खाना बने। पूरे वक्त पर खाना तैयार करके मैं अपनी नंद के पास गई कि उसे हल्का फुल्का तैयार कर दूं। उसकी उम्र गुजर रही थी, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। खैर, वो लोग आ गए। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि उन्हें हमारी नाजिया भी पसंद आ गई। खाने का वक्त आ गया। सब बहुत खुश थे। मैंने बड़ी ही खूबसूरती से खाना मेज पर लगा दिया, खुद किचन में चली गई। अभी मुझे वहां आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाहर से मुझे आवाजें आने लगी
जैसे कोई लड़ रहा हो। मैं जल्दी जल्दी बाहर गई तो मैंने देखा नाजिया के होने वाले ससुर इस बात पर बहस कर रहे थे कि आटे में नमक शदीद है। अगर आज हम इस बात का ख्याल नहीं रख सकते तो आगे क्या करेंगे? हमें इस घर में रिश्ता ही नहीं करना जहाँ हमारे बार बार बताने पर भी हमारी इतनी सी बात की कदर नहीं की गई। अम्मा उन लोगों के आगे हाथ जोड़ रही थी कि खुदा के लिए ये जुल्म न करें। नाजिया के अब्बा यानी मेरे ससुर भी उन्हें समझाने लगे, लेकिन इन लोगों ने किसी की एक न सुनी और इस रिश्ते को लात मारते हुए वहाँ से चले गए। वो दिन तो किसी कयामत से कम नहीं था। अम्मा मुझे बुरी तरह पीटने लगी। सब मुझे लान तान कर रहे थे कि मेरी वजह से इनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। मेरी समझ से बाहर था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खाने को चख कर बिल्कुल ठीक पकाया था। तब मेरी सामने मेरी नज़र अपने देवर पर पड़ी जो हमेशा की तरह बड़ी ही शातिर नज़रों से देख रहा था। तब मुझे यकीन हो गया कि ये सब कुछ इसी का किया धरा है। अब मैंने सोच लिया कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। हमजा को मुझे सब बताना ही पड़ेगा। हमजा भी इन सब हालात की वजह से मुझसे शदीद नाराज़ था। अम्मा तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थीं, इसीलिए पूरा दिन अपने कमरे में ही रही। जैसे ही हमजा रात को कमरे में आए, मैं उनके पास जाकर बैठी। उनसे कहा कि आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस बात को सुनने के बाद आप मुझसे वादा करें कि आप खफा नहीं होंगे। वो मेरी जानिब देखे बगैर बोले, देखो रानिया, अब कुछ कहने और सुनने को नहीं बाकी रहा। आज जो कुछ भी हुआ मुझे इस सब की कम से कम तुमसे उम्मीद नहीं थी। तब मैंने कहा कि ये सब कुछ मैंने किया भी नहीं है। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगे और कहने लगे, क्या चाहती हो तुम? अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? तब मैंने उसकी तरफ देखा और हिम्मत जताकर बोली कि ये सब कुछ दानियाल ने किया है। मेरी बात पर वो तैश में आ गया और कहने लगा, ये सही तरीका है अपना सर बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा दो। अब तुम्हें और कोई नहीं मिला तो उस मासूम बच्चे पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं मिन्नत भरे लहजे में बात कर रही थी, मगर वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी रोदात सुना दी, लेकिन उसने सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे बुरी तरह झिड़क दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक छोटे से बच्चे के मुतालिक इस तरह की बातें कर रही हो। उसकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा और नफरत था। उसने मेरी जानिब हकारत भरी नज़र डाली और कहा कि इस वक्त मुझे उससे ज्यादा तुम्हारे किरदार पर शक हो रहा है। वो कुछ कहते कहते रुक गया और वहाँ से उठकर चला गया। मैं जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरा शौहर जो मेरे साथ मोहब्बत की शादी करके मुझे यहाँ पर लाया था, मुझ पर उल्टा इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा था। वो सारी रात मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी। अब घर में सभी मुझसे दूर रहने लगे। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं भी यहाँ से दूर चली जाऊं, लेकिन सोचती कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो हर कोई यही सोचेगा कि कसूरवार मैं ही थी। सो यहाँ से जाने में मेरी किसी तौर पर भी कोई भलाई नहीं थी। ये सोचकर मैंने इस घर से निकलने का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन दानियाल की नजरें अब भी मुझे जहर लगती। वो अब भी मुझे उन्हीं नजरों से देखता। 2-4 दिन बाद जब मैं आटा गूंदने बैठी तो वो सामने आकर खड़ा हो गया। मुसलसल मेरी तरफ देखता रहा। उसकी नजरें अजीब सी थीं। मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई। वो मुझे तंग करना चाहता था। मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि अचानक आटे में पानी ज़्यादा मिल गया और आटा ढीला हो गया। इससे पहले कि मैं उसमें खुश्क आटा मिक्स करती, ऊपर से मेरी सास आ गई और मुझे बुरी तरह झड़कने लगी। मैं इस बच्चे की असलियत अब सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ उल्ट हो रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी और वो बाहर से दरवाज़ा बजा रहा था। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, इसलिए मैं उसके दरवाज़ा खटखटाने के अंदाज से बखूबी वाकिफ थी। थोड़ी ही देर में वो वापस मुड़ गया। उस रात हमजा को किसी काम से दूसरे शहर जाना था। पक्की तसल्ली नहीं थी कि वो रात को वापस आएगा या वहीं रहेगा। रात के 11 बजे सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी हस्बे मामूल अपने कमरे में आ गई। दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे था कि शायद हमजा आ जाएगा। वो कभी इस तरह बाहर नहीं रहता था, चाहे आधी रात ही क्यों न हो, घर जरूर आता था। मैं गहरी नींद सो गई थी जब अचानक मेरे कमरे की लाइट ऑन हुई। मैं डर कर उठ बैठी। जैसे ही मेरी नज़र अपने पहलू पर पड़ी तो वहाँ दानियाल डरा हुआ बैठा था। सामने हमजा खड़ा था। मैं नहीं जानती थी कि दानियाल यहाँ कैसे आया और हमजा ने क्या मंजर देखा, लेकिन उसके बाद मेरा तो दिल ही दहल गया। हमजा ने दानियाल को बेड से घसीट कर नीचे उतारा। उसे बुरी तरह पीटने लगा। मैंने कोशिश की कि उसे छुड़वा सकूं, लेकिन हमजा ने मेरी एक न सुनी और उसे
मारता रहा। शोर सुनकर सब घर वाले इकट्ठे हो गए। अब्बा और अम्मा ने आगे बढ़कर दानियाल को छुड़वा लिया। तब हमजा ने कहा कि आप लोग मेरी बीवी को कसूरवार कहते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि कसूरवार कौन है। दानियाल को मैंने अपनी आंखों से छुपकर इस कमरे में आते और बेड पर बैठते देखा है। ये लड़का इस लायक ही नहीं है कि इसे इस घर में रखा जाए। एक मर्तबा फिर गुस्से में आकर वो दानियाल को मारने के लिए आगे बढ़ा कि मैंने उसका हाथ रोक लिया। सब लोग बहुत परेशान हो गए और घबरा गए। दानियाल नजरें झुकाए खड़ा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया या फिर क्या चक्कर था कि वो यूं डरा हुआ खड़ा था। उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ से वो सब कुछ निकला जो मैंने हमजा को बताया, मगर उसने यकीन न किया। अगली सुबह हमजा ने यह फैसला किया कि दानियाल को किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दें। उस दिन उसने दानियाल के दाखिले का भी बंदोबस्त कर दिया। चंद दिन दानियाल घर में कड़ी निगरानी में रहा, फिर उसे हॉस्टल भेज दिया गया। अम्मा और हमजा अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थे। इन दोनों ने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने इन्हें माफ़ भी कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इनकी जगह मैं होती तो मेरा भी यही रद्द-ए-अमल होता। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कोई मुसीबत का मारा आपको कुछ बताए तो उसकी बात पर एक मर्तबा तहकीक ज़रूर किया करें। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि न जाने कब किसी मासूम और फरिश्ता सिर्फ चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा शैतान छुपा बैठा हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ, बेटी और बहन की इज्जत अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।